الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ کی ذات ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہمارے رازق ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، اللہ سبھی مخلوقات سے زیادہ انسان کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اور پھر انسانوں میں اللہ کا پیار ان لوگوں کے ساتھ زیادہ ہے جو ایمان والے ہیں، اور اس پیار کے اندر اور بھی بہت سی نشانیاں ملیں گی۔ انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ یہ اللہ کا ایمان والوں کے ساتھ پیار ہے۔ ایمان والے تھے، کبھی غلطی ہو گئی، کبھی گناہ ہو گیا، کوئی کوتاہی ہو گئی، اعمال میں خرابی آ گئی، اللہ کی ناراضگی کر بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کرنے کا ایک بہانہ بنایا رمضان المبارک کا مہینہ، کہ ہم تمہیں معاف کرنا چاہتے ہیں اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ تمہیں دیتے ہیں، تم اس کی قدر کر لو اور اپنی مغفرت کروا لو، اپنی بخشش کروا لو۔ حقیقت میں رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ مغفرت کے لیے دے رہا ہے، بخشش کروانے کے لیے دے رہا ہے۔ اس کی تائید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ کہ ایک دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد نبوی میں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے قریب ہو جاؤ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ممبر کی طرف چلے۔ اس پر بیٹھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب خطبے سے فارغ ہوئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، حضور آج آپ نے خلاف واقع آمین بولا ہے، کس دعا پر بولا ہے، کس کے کہنے پر بولا ہے، ذرا تفصیلات بتا دیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، جب میں ممبر پر بیٹھنے کے لیے اس کے قریب پہنچا تو سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لے آئے۔ جیسے ہی میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے وہ بندہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ اس میں اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروا سکے۔
फरमाया कि मैंने कहा आमीन। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हलाक हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए वो बंदा जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और वो दुरूद पाक ना पढ़े। फरमाया कि मैंने आमीन कहा। तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हलाक हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए वो बंदा जिसके वालिदैन में एक या दोनों बुढ़ापे की हालत में उसको मिले और वो उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सके। फरमाया मैंने कहा आमीन। अब यहां पर देखिए, सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बद्दुआ दे रहे हैं और उनका काम नहीं है बद्दुआ देना, और किसी जगह भी आपको ये बातें नहीं मिलेंगी। ये एक ख़ास वाक़े के अंदर अल्लाह की ज़ात अहमियत बयान फरमा रही इन तीनों चीज़ों की, और सैयदुल मलाइका को भेजा है रब्बे ज़ुल जलाल ने, और आप तशरीफ़ लाए, तीन बद्दुआएं की, और सिर्फ सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बद्दुआ क्या कम थी। और फिर उसके ऊपर अल्लाह ताला ने क्या किया कि सैयदुल इंस वल जिन, महबूब कायनात, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल अंबिया, हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया वो आमीन कह रहे हैं उस पर, वो मोहर लगा रहे हैं उस पर। अब जब सैयदुल मलाइका की बद्दुआ है और सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उसके ऊपर आमीन है, क्या छुटकारा हो सकता है इससे? हमें क्या बात मिली इस हदीस मुबारक से कि जिस बंदे की जिंदगी में रमजान मुबारक आए और फिर वो उससे अपनी बख्शिश न करवा सके, वो बंदा हलाक हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए। मालूम हुआ अल्लाह की ज़ात रमज़ान मुबारक का महीना देते ही इसलिए हैं बंदा अपनी बख्शिश करवा ले, बंदा अपने गुनाहों को धुलवा ले, बंदा अपने आप को साफ करवा ले, बंदा अपने दिल को रोशन करवा ले, बंदा अपने दिल को मुनव्वर करवा के अल्लाह की ज़ात को राज़ी कर ले, मुत्तकी परहेजगारों में अपना नाम लिखवा ले, जन्नत का टिकट हासिल कर ले अल्लाह ताला से। इसलिए तो अल्लाह की ज़ात इस रमज़ान मुबारक के महीने में ईमान वालों को 3 दफ़ा अल्लाह की रहमत की पुकार आती है हर रात में। एक मुनादी सदा लगाता है कोई अल्लाह से मांगने वाला, अल्लाह उसको अता कर दें। है कोई अपने गुनाहों से तौबा करने वाला, अल्लाह उसको मुआफ कर दें। है कोई मगफरत चाहने वाला, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा दें। अल्लाह की रहमत सदाएं लगाती है बंदे को मुआफ करने के लिए, बंदे की तंगियों को दूर करने के लिए, बंदे की आजमाइशों को ख़त्म करने के लिए। लेकिन बंदा अगर सोया हुआ है तो क्या अल्लाह नाराज नहीं होंगे? अल्लाह की ज़ात बंदे को बख्शना चाहती है और बंदा बेपरवाह होकर रमज़ान मुबारक का महीना गुजार देता है, क्या अल्लाह की ज़ात नाराज नहीं होगी? यकीनन अल्लाह की ज़ात नाराज होगी कि हम इसके लिए बख्शिश का बहाना ढूंढ के लाए हैं और इसको परवाही कोई नहीं। और रमज़ान मुबारक का महीना ये मेहमान है, मेहमान की तो वैसे भी इज्जत का हुक्म है, मेहमान के साथ एहतराम वाला मामला करने का हुक्म है। और फिर वो मेहमान हो जो कि बहुत से इनामात लेकर आया हो तो उसकी तरफ तो दिली मेलान भी बन जाता है, कभी खाली हाथ आने वाला मेहमान नहीं है, बड़े इनाम लेकर आया है। तो रमज़ान मुबारक का महीना वो मेहमान है जो ढेरों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं,
लाखों करोड़ों इनामात लेकर हम तक पहुंच रहा है। क्या इनामात हैं रमजान मुबारक के? आज हम फर्ज पढ़ रहे हैं, एक फर्ज का वही एक सवाब होगा, और जब रमजान मुबारक आ जाएगा हम वही फर्ज अदा करेंगे तो एक फर्ज का 70 गुना सवाब मिलेगा, 70 फर्जों के बराबर एक फर्ज का सवाब मिलेगा। रमजान मुबारक आएगा, हमारे नवाफिल उनका सवाब 70 उनका सवाब फर्जों के बराबर चला जाएगा। आज हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, मिसाल के तौर पे सुबहान अल्लाह बोलते हैं, तो जन्नत में एक दरख्त लग रहा है। रमजान मुबारक आएगा, सवाब 70 गुना बढ़ेगा, तो एक सुबहान अल्लाह पर अब एक दरख्त जन्नत में नहीं लगेगा, 70 दरख्त जन्नत के अंदर लगाए जाएंगे। 70 गुना सवाब हर चीज का बढ़ गया। यह रमजान मुबारक के तोहफे हैं, ये रमजान मुबारक के इनामात हैं। इसलिए हमें क्या चाहिए? हम ऐसे मेहमान को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहें, दिल की गहराई से जाकर हम उसको खुश आमदीद कहें। और फरमाया कि अगर लोगों को पता चल जाए कि रमजान मुबारक में इनामात क्या क्या हैं और रमजान मुबारक के जरिए से हमें क्या कुछ मिलने वाला है, तो तमन्ना करेंगे काश के सारा साल ही रमजान रहे और हम इनामात को, इसके इनामात को लूटते रहें। लेकिन ये अल्लाह का इनाम है। 11 महीने के बाद एक महीना अल्लाह ताला ऐसा अता फरमाता है, और फिर इन इनामात को लूटते वक्त हमारा दुश्मन शैतान हम पर हमलावर हो सकता है। अल्लाह फरमाते हैं सैयदना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, मैं अपने नेक बंदों को, मैं अपने गुनाहगार बंदों को इनामात तकसीम कर रहा हूं। मेहमान पहुंचा है, इनामात लेकर गया है, कहीं दुश्मन हमलावर ना हो जाए, दुश्मन को कैद कर लिया जाए, उसको हथकड़ियां पहनाई दी जाएं, उसको जकड़कर दरियाओं और समुद्रों के अंदर फेंक दिया जाए। दुश्मन को भी कैद कर दिया गया। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? ये अल्लाह की मोहब्बत नहीं है तो और क्या है? अल्लाह की बख्शिश नहीं है तो और क्या है? अल्लाह की रहमतें नहीं है तो और क्या है? अल्लाह की ज़ात तो बख्शना चाहती, अल्लाह की ज़ात तो रहमत करना चाहती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम टस से मस नहीं, हमारी तवज्जो नहीं, और हमें पता ही नहीं चलता। अल्लाह माफ फरमाए, मुसलमान ऐसे घराने कि जिनके दरवाजे से अंदर ये मेहमान दाखिल नहीं होता, गली से गुजर कर मेहमान दूसरे घरों के अंदर चला गया, उनको पता चल गया कि रमजान आ गया है, उन्होंने उसको खुश आमदीद कहा, बड़ों ने खुश आमदीद कहा, छोटों ने खुश आमदीद कहा, यहां तक कि बच्चों ने भी रमजान मुबारक को खुश आमदीद कहा और उसका इस्तकबाल किया। और यहां ऐसे ऐसे घराने रह जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि रमजान आया है या नहीं। उनके घरों के अंदर वही रूटीन है जो रमजान के अलावा थी, वही अल्लाह की नाफरमानियां चल रही। अब क्या कहेंगे कि शैतान करवा रहा है? नहीं, दुश्मन को तो अल्लाह ने कैद कर दिया। अब इनका नफ्स इनके ऊपर इतना हावी हो चुका है, वो इनके ऊपर इतना ताकतवर और जबरदस्ती कर चुका है कि अब इनके लिए कोई छुटकारा नहीं है। इसलिए अब जो बंदा रमजान मुबारक की तरफ तवज्जो नहीं करेगा, अब फिर वो हदीस मुबारक ज़हन के अंदर रखिए कि उसके ऊपर सैयदुल मलाइका ने बद्दुआ क्या की है और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर आमीन क्या कही है। और हर रात जो ऐलानात हो रही हैं, मगफरत करवा लो, तौबा कबूल करवा लो, कोई अपनी मुसीबतें आजमाइशें हैं, कोई काम की रुकावटें हैं, आओ दरखास्तें ले आओ, अल्लाह की ज़ात उसके ऊपर साइन करके उसको कबूल करने के लिए तैयार है। शाही ऐलान हो रहा है। जब शाही ऐलान होता है
تو ہر قیدی چاہتا ہے میری درخواست پر سب سے پہلے سائن ہو جائے۔ ارے ہم دنیا میں قیدی ہیں، ہماری اگلی منزل جنت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں اللہ تعالیٰ سے جنت کا سرٹیفکیٹ سائن کروا لیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ایسا ہوگا، اس میں اللہ بانٹ دیں گے جنت کو، وہ دے رہے، وہ دے رہے، اس کو بھی دے رہے، اس کو بھی دے رہے، اس کو بھی دے رہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کا چناؤ کر کے اللہ نے اس میں قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اس مہینے کو قرآن پاک کی نسبت حاصل ہے۔ قرآن اونچا تھا کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ جب وہ قرآن پاک اس مہینے کو ملا، یہ مہینہ بھی اونچا ہو گیا۔ اب اس مہینے کے اندر جہاں اور اعمال کرنے ہیں، وہاں سب سے زیادہ جو اللہ کو محبوب عمل ہے اور بزرگان دین اس کی طرف توجہ کرتے ہیں اور لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں، وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ سب سے زیادہ جو اللہ کو محبوب عمل ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، کیونکہ قرآن اور رمضان ان دونوں کی دوستی ہے، ان دونوں کا ایک تعلق ہے، ان دونوں کے درمیان ایک نسبت ہے۔ جب بندہ اس دوستی کی لاج رکھتا ہے، اس نسبت کی لاج رکھتا ہے، تو جس طرح قرآن اونچا، اس نے رمضان کو اونچا کر دیا، جب بندہ ان کی لاج رکھے گا اللہ اس بندے کو بھی اونچا کر دیں گے۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں خود بھی خوشیاں اختیار کریں۔ اس کے آنے سے پہلے پہلے گھروں کے اندر ایک اجلاس بلایا جائے اور اس اجلاس میں یہ باتیں طے کر لی جائیں کہ ہماری گھر کی چار دیواری کے اندر کون کون سی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، نافرمانیاں ختم کر دو۔ ہماری گھر کی چار دیواری میں کوئی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہماری گھر کی چار دیواری میں کوئی غیبت نہیں ہونی چاہیے، ہمارے گھر کی چار دیواری میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کریں گے تو پھر ہمارا روزہ اللہ کی ذات کے ہاں اتنا قیمتی بن جائے گا کہ دوسرے لوگ وہاں نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس کی میں مثال عرض کرتا ہوں۔ درود پاک ہم پڑھتے ہیں اور ہمارا یہ درود پاک جب ہم پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، اللہ کی ذات فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ وہ فرشتے صرف اسی کام کے لیے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں ہی یہی ہیں کہ وہ ایمان والوں کا درود پاک لیتے ہیں اور اس کو سجاتے ہیں خوبصورت پیکنگ میں، اس کے اوپر نام، اور اس طریقے سے لے جا کر ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر پیش کر دیتے ہیں۔ اب درود پاک پڑھنے میں وضو شرط نہیں ہے، گویا کہ وضو کی رخصت ہے کہ اگر کوئی بندہ بغیر وضو کے بھی درود پاک پڑھے، عورت خاص ایام میں بھی درود پاک پڑھ سکتی ہے، اس کو اجازت ہے، رخصت ہے اس کو۔ اب ایک بندہ درود پاک پڑھتا ہے باوضو ہو کر اور ایک پڑھتا ہے بے وضو، دونوں کے درود پاک کے اندر فرق آ جائے گا، اس ہدیے کے اندر فرق آ جائے گا۔ ایک بندہ درود پاک پڑھتا ہے قبلہ رو ہو کر اور ایک بندہ قبلے کی رعایت نہیں کرتا، دونوں کے اندر فرق آ جائے گا۔ ایک بندہ درود پاک پڑھتے ہوئے درمیان میں کوئی بات نہیں کرتا، خالصتاً توجہ کرتا ہے اللہ کی ذات کی طرف، اور یہ سوچتا ہے، یہ تصور کرتا ہے
کہ मैं रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठा हूँ और आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दुरूद पाक पेश कर रहा हूँ। और एक बंदा इन बातों की रियायत नहीं रखता, ये दोनों के दुरूद पाक बराबर हो जाएंगे? नहीं होंगे। इस अमल से ये समझिए, एक बंदे ने रोजा रखा और उसकी घर की चार दीवारी के अंदर किसी किस्म की अल्लाह की नाफरमानी नहीं हुई, इसका रोजा इसको कहां लेकर जाएगा, जन्नत के किस दर्जे में जाकर पहुंचाएगा। और एक वो रोजा कि जहां घर के अंदर नाफरमानियां हो गई और खुद रोजे की हालत में इसने अल्लाह की नाफरमानी कर दी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में एक मर्तबा दो औरतों की बात पेश की गई कि हुजूर रोजा है और दोनों को रोजा इतना लग रहा है कि मरने के करीब पहुंच गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला मंगवाया और उनके पास भेजा, इसके अंदर क्या करो। उन्होंने क्या कि तो उसके अंदर से गोश्त की छोटी लोथड़े और खून वो उनके अंदर से निकला। हालांकि रोजा रखा हुआ है, परेशान हो गए कि ये खून कहां से। तो बताया गया कि तुमने मुसलमान की गीबत की है। और कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूहु वत्तकुल्लाह। क्या तुम पसंद करते हो, क्या तुम में कोई पसंद करता है अन याकुल लहमा अखीहि, कि वो अपने भाई का गोश्त खाए। भाई भी कौन सा, मुर्दा भाई का गोश्त खाए। तो गीबत करना गोश्त खाना है, गोश्त भी हराम, वो भी इंसान का, वो भी भाई का, वो भी मुर्दा भाई का। और रोजे की हालत में गीबत कर दी। हलाल चीजों से बच गया, रोटी नहीं खाई, पानी नहीं पिया, दूध नहीं पिया, फ्रूट नहीं खाया, कोई चीज नहीं खाई, परहेज कर दिया, रोजा है, लेकिन गीबत कर दी। अब उसकी वजह से इतना रोजा लगा कि मरने के करीब पहुंच गए। और यहां उलमा इकराम ने बड़ी प्यारी बात लिखी है, फरमाते हैं कि जो बंदा मुत्तकी हो, परहेजगार हो, वो जितना भी कमजोर हो, जब वो रोजा रखता है और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उस रोजे को पूरा करता है, उसको रोजा नहीं लगता, उसको महसूस भी नहीं होता, शाम तक उसको पता भी नहीं चलता कि रोजा क्या था। और जो बंदा इन चीजों की रियायत नहीं रखता, वो अगर ताकतवर भी है, वो जवानी में भी है, उसको दोपहर को ही पता चलना शुरू हो जाता है, वो हाय मेरा तो रोजा लगना शुरू हो गया, वो पीटने पटाने पे आ जाता है, मरने तक चला जाता है, क्योंकि रोजे की रियायत नहीं रखी। तो मालूम क्या हुआ कि जो बंदा रोजे की रियायत रख लेता है, वहां तो अल्लाह की रहमतें आती हैं, और जो बंदा रोजे की रियायत नहीं रखता, वहां अल्लाह की रहमत नहीं आती। और हम ये जो रोजा रख के सुबह से लेकर शाम तक इतना बड़ा समुंदर पार करते हैं, ये अल्लाह की रहमत से पार करते हैं। हमारा क्या कमाल है इसमें? किसी बंदे का कोई कमाल नहीं। कौन इतनी लंबी 14 घंटे 15 घंटे भूख प्यास कौन बर्दाश्त कर सकता? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रहमत का सहारा होता है। नाम हमारा दे देते हैं अल्लाह ताला, वाह बंदे वाह, शाबाश शाबाश तूने रोजा रख लिया, शाबाश हमें मिल रही है। ऐसे ही है जिस तरह अपने बच्चे को बंदा काम हाथ बटा के खुद सारा काम करवा के फिर उसको शाबाश देता है कि वाह बेटा वाह, तूने तो कमाल कर दिया, आज ये सारा कुछ तूने कर दिया। अल्लाह की ज़ात हमसे इतना प्यार करते हैं, खुद सारा आखिर तक सहारा देकर अपनी रहमतों के दामन में हमें लेकर अल्लाह ताला आखिर तक पहुंचा देते हैं, और फिर हमें सहारा दे देते हैं कि वाह बंदे तूने रोज़ा रखकर कमाल कर दिया। अब आता है अफ्तारी का वक़्त। अफ्तारी के वक़्त में हमें चाहिए कि हम अफ्तारी की जब तैयारी करें, उसमें कुछ थोड़ी सी चीज़ इस नीयत से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
कि अफ्तारी का दूसरों को भी करवानी चाहिए, दूसरे दस्तरखान पर भी हमारी अफ्तारी पहुंचनी चाहिए, और दूसरों को अफ्तारी करवाएंगे उनका सारा सवाब भी हमें मिलेगा। तो आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म समझकर दूसरे के दस्तरखान पर पहुंचाओ। सहाबा ने उसी वक्त ही अर्ज कर दिया था जो आज हमें खदशात हैं, हमारे पास है क्या, हम क्या अफ्तारी करवाएंगे। जरा सहाबा इकराम को देखिए कि उस वक्त उनके पास क्या था। हमारे पास तो अल्लाह का शुक्र है बहुत कुछ है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के मुताबिक जवाब दिया, भाई और कुछ नहीं है तो खजूर के एक टुकड़े से इफ्तारी करवा दो, और कुछ नहीं है तो लस्सी के एक घूंट से इफ्तारी करवा दो, और कुछ नहीं है तो पानी के घूंट से इफ्तारी करवा दो। सुभान अल्लाह, तुम्हें वही सवाब मिलेगा जो एक बंदा बेहतरीन किस्म के खाने मुर्गे चरगे बनाकर उनसे इफ्तारी करवाता है, जो उसको सवाब मिलता है वही तुम्हें मिलेगा। ये इखलास के ऊपर है कि तुम्हारी नीयत क्या थी अल्लाह को राजी करना। इसलिए अपना मामूल रखें रमज़ान मुबारक के पूरे महीने में कि रोज़ाना हमारे घर की चारदीवारी से किसी न किसी दस्तरखान पर हमारा हिस्सा पहुंचना चाहिए। जब वो अफ्तारी के लिए पहुंचेगा हमें सवाब मिल जाएगा। अब यहां एक सवाल पैदा होता है कि जो अफ्तारी हमारी जानी है, क्या मालूम कि वो उससे इफ्तारी करते हैं या अपनी किसी चीज़ से इफ्तारी करते हैं। तो फिर जिस चीज़ से इफ्तारी होगी सवाब तो उस चीज़ का मिलेगा, हमारी चीज़, हमारी जो बनी हुई चीज़ वो तो पीछे रह गई। जवाब ज़हन के अंदर रखिए कि दस्तरखान पर अफ्तारी के मौका पर जो कुछ पहुंच गया वो अफ्तारी के अंदर काउंट हो गया, चाहे उसको पहले इस्तेमाल कर लिया गया या बाद में इस्तेमाल कर लिया गया, हमें उसका सवाब मिल गया। हमें अपने इखलास के मौका पर अल्लाह ताला की रजा हासिल हो गई। ये वो बाबरकत महीना है, ये वो अल्लाह का मेहमान महीना है जिसमें 5 इनामात स्पेशल अल्लाह ताला की तरफ से इस महीने के अंदर हमें अता में होते हैं। सबसे पहला इनाम, जब दोपहर का वक़्त ख़त्म होता है ना, तो मैदा खाली रहने की वजह से मुंह से एक स्मेल पैदा होती है, बू पैदा होती है। अल्लाह ताला को वो बू मुश्क व अंबर से भी ज़्यादा पसंदीदा है, क्योंकि अल्लाह को मालूम है ये बंदा अपनी भूख किस लिए बर्दाश्त कर रहा है, सिर्फ मुझे राज़ी रखने के लिए। तो अल्लाह बड़े खुश होते हैं उस बंदे से। दूसरा फ़ायदा, इस बाबरकत महीने में रोज़ेदार के लिए समुंदर के अंदर मछलियां दुआएं करती हैं, इसके लिए मगफरत के लिए दुआएं करती हैं। सुभान अल्लाह, समुंदर में मछलियां। उलमा इकराम फरमाते हैं कि सिर्फ समुंदर की मछलियां ही नहीं, बल्कि इंसान के अलावा जितनी मखलूकात हैं वो सब की सब रोज़ेदार के लिए दुआ करती हैं। और इसकी वजह बड़ी प्यारी इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला का कानून ये है कि अल्लाह की ज़ात जिस बंदे से प्यार करती है, अल्लाह सबसे पहले उस प्यार का इजहार, उस मोहब्बत का इजहार, उस राज को आउट करते हैं, मोहब्बत वाले राज को, प्यार वाले राज को, कि मेरा इस बंदे से प्यार है। वो राज आउट करते हैं सय्यदुल मलाइका हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने। उसको बताते हैं कि मैंने इस बंदे के साथ प्यार कर लिया है, ए जिब्रील तू भी इस बंदे के साथ प्यार कर ले। तो जब हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चलता है, तो हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान के बाकी फरिश्तों को बताते हैं कि अल्लाह ताला ने फलां बंदे के साथ प्यार किया है, तुम भी उससे प्यार करो। बाकी फरिश्तों को बता दिया। थोड़ी सी लंबी हदीस है। नीचे जो ज़मीन पर चलने वाले फरिश्ते थे उनको बता दिया, यहाँ तक कि ज़मीन पर रहने वाले इंसानों के दिलों के अंदर अल्लाह की तरफ से डाल दिया जाता है, फलां बंदे से हम प्यार कर रहे हैं, तुम भी उससे प्यार करो। और फिर जितनी भी अल्लाह की मखलूकात हैं अल्लाह उनके दिलों में डाल देते हैं कि फलां से हम प्यार करते हैं, तुम भी प्यार करो। और ये रोज़ेदार वो बंदा है कि जब अल्लाह इससे प्यार करते हैं,
अल्लाह सभी मखलूक़ात के दिलों में डाल देते हैं। ये रोज़ेदार मेरी रज़ा के लिए, मुझे खुश करने के लिए भूख बर्दाश्त कर रहा, प्यास बर्दाश्त कर रहा है, और ये सब चीज़ें मुझे राज़ी करने के लिए कर रहा है। मैं रब भी खुश हूँ, मैं इससे मोहब्बत कर रहा हूँ। ए मखलूक़ात सारी की सारी सुन लो, तुम भी इससे मोहब्बत और प्यार करो। इसी मोहब्बत के अंदर आकर वो चीज़ें इसके लिए दुआएं करती हैं। यहाँ तक कि मछलियाँ समुंदर की तह के अंदर चलती हुई इस बंदे के लिए मोहब्बत के अंदर आकर मग़फ़िरत की दुआएं करती हैं, अल्लाह इसकी बख्शिश फरमा दीजिए। सुभान अल्लाह। तो यहाँ से बात हमारी चली थी, अल्लाह बख्शना चाहते हैं, और उस बख्शिश के अंदाज क्या क्या अल्लाह ने रखे। मछलियों की भी ड्यूटी लगा दी, जंगल के अंदर चलने वाले दरिंदों की ड्यूटियां लगा दी। चींटी अपने बिलों के अंदर बैठकर इस बंदे के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करती नजर आती है। किस लिए? कि अल्लाह इसको मुआफ़ करना चाहते हैं। इसने भी अल्लाह का हुक्म मानकर रोज़ा रख लिया, उसका एहतराम कर लिया, रमज़ान मुबारक की कदर कर ली, अब अल्लाह ताला इसको बख्श देंगे। अल्लाह तो बख्शना चाहते थे, अल्लाह ने सभी मखलूक़ात को भी लगा दिया। तुम भी दुआएं करो, अल्लाह की रहमत जोश में आती है और अल्लाह इसकी बख्शिश का ऐलान फरमा देते हैं। तीसरा फ़ायदा, तीसरा इनाम जो ख़ास इस महीने में किया जाता है, रोज़ेदार के लिए जन्नत को सारा साल सजाया जाता है। सुभान अल्लाह। आज हम रमज़ान मुबारक से पहले इस मेहमान के लिए अपने घर को सजा लें, अपने दिलों को सजा लें, खंदा पेशानी के साथ इसका इस्तकबाल करें। अल्लाह रोज़े की बरकत से हमारे लिए जन्नत को सजा रहे हैं। रमज़ान मुबारक की बरकत से अल्लाह हमारे लिए रोज़ेदार के लिए जन्नत को सजा रहे हैं। और इससे अगला फ़ायदा क्या होता है कि इस महीने के अंदर सरकश शयातीन को कैद कर दिया जाता है। ये दुश्मन हैं, कहीं इनामात लेने में रुकावट न बन जाएं, कहीं अल्लाह से मग़फ़िरत करवाने में रुकावट न बन जाएं, अल्लाह की नाराज़गी ना मोल लेने दें। पकड़ लो इनको। और पांचवा इनाम यह होता है कि इसमें दिन रात दुआएं कबूल होती हैं। दिन को मांगो वो भी कबूलियत, रात को मांगो वो भी कबूलियत। इसलिए हमें चाहिए कि हम रमज़ान मुबारक की कदर कर जाएं, इसका एहतराम कर जाएं, इसकी बेकदरी से बचें। अगर ये मेहमान नाराज़ होकर चला गया और इसने अपने आका के पास जाकर हमारी रिपोर्ट गलत दर्ज करवा दी, बस हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया। और अगर इसको हमने खुश करके भेज दिया, राज़ी करके भेज दिया, तो फिर हमारा बेड़ा पार हो गया और अल्लाह की तरफ से हमें जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया। रमज़ान मुबारक में हमें क्या क्या काम करने चाहिए? कलमा तय्यबा की कसरत करनी चाहिए, कसरत के साथ कलमा तय्यबा पढ़ना चाहिए। नंबर 2, इस्तिग़फ़ार कसरत के साथ करने चाहिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये भी काफ़ी है। और अगर पूरा पढ़ लें तो बहुत बेहतर, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। और नंबर 3, अल्लाह से जन्नत मांगनी है। फरमाया कि जो बंदा सुबह के वक़्त में 3 मरतबा अल्लाह से जन्नत मांगता है, जन्नत खुद सिफारशी बनकर अल्लाह के दरबार में आती है, या अल्लाह ये जन्नत मांग रहा है, इसको अता कर दीजिए। जो बंदा, और चौथी चीज, अल्लाह से जहन्नम से पनाह मांगनी है, अल्लाह जहन्नम से बचा लीजिए। जो बंदा जहन्नम से पनाह चाहता है, 3 मरतबा जहन्नम से पनाह मांगता है, जहन्नम खुद सिफारशी बन के आती है, अल्लाह इसको पनाह दे दीजिए। ये हैं करने के काम। रमज़ान मुबारक के महीने में हमें कौन से काम नहीं करने चाहिए? इसमें जो सबसे बड़ा गलत काम है वो है टेलीविज़न को ऑन करना, मोबाइल का इस्तेमाल करना।
اور اس میں شیطان ہمیں کہتا ہے کہ ہم جناب اس میں نعت سن رہے ہیں، ہم اس میں پروگرام اسلامی دیکھ رہے ہیں، کوئی گانا تو نہیں ہے، کوئی ڈرامہ بھی نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ 11 مہینے جو ڈرامہ کرتے ہیں وہ رمضان المبارک کے مہینے میں اسلامی پروگرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہی جو ڈرامے 11 مہینے کر رہے ہوتے ہیں وہی اس مہینے کے اندر آ کر وہ اسلامی پروگرام اسی ڈراموں کی شکل کے اندر پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے اوپر لیبل لگ جاتا ہے کہ جناب اسلامی پروگرام ہے۔ 11 مہینے ڈانس گانا اور کیا کچھ انہوں نے چلایا، اور اس کے بعد 1 مہینے کے لیے وہ رمضان المبارک کا احترام اپنی طرف سے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم اسلامی پروگرام کر رہے ہیں۔ ان چیزوں سے بچنا ہے، یہ کام نہیں کرنے، اس سے اللہ کی ناراضگی ہوگی کہ اللہ کی ذات تو بخشنا چاہتی ہے اور ہم اس کو ناراض کر کے ہم ان کاموں پہ پڑ گئے کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کاموں سے بچیں۔ اسی طریقے سے یہ کسی کو نہیں کہنا چاہیے کہ آج ہمیں روزہ بڑا لگ رہا ہے، اس سے روزے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر کسی وقت تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے، بھوک کی احساس ہو رہا ہے بھوک کا، تو اس کو اللہ کی ذات کے سامنے چھپا لینا چاہیے۔ یہ تو راز ہے، اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے، اس کو آؤٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی رمضان کی قدری ہے، بے قدری ہے۔ اور کسی کے سامنے یہ ذکر کرنا کہ میں نے آج سحری تھوڑی سی کھائی ہے یا بغیر سحری کھائی میں نے روزہ رکھ لیا ہے، یہ بھی رمضان مبارک کی ناقدری ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور بہت سی بھی باتیں ہیں جو رمضان المبارک کے درمیان میں اگر ضرورت پڑی تو وہاں انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔